Hello students, welcome to online class. So in previous class we discussed about that what is dispersion, what is spectrum or recombination of prisms. So these are the topic we discussed today. We discussed about that how does the rainbow is formed, what is total internal reflections, so and apparent position of the stars, why stars twinkling. So these are the some topics which we discussed today. Okay, total internal reflections. Definition of total internal reflection is when light enters obliquely from a denser medium to a rarer medium and the angle of incidence exceeds critical angle, the light reflects in the denser medium. This is called internal reflections. So see the diagram first. The incident ray, so it's come from denser medium and enters into the rarer medium. It means it comes from one medium to the another medium, so it's bends. Some obliquely means it bends. Okay, so an angle, some angle is formations in first diagram. In second diagram also it's somehow that more angle is formations. In the third diagram, so that more, that is incident ray bends and the reflected ray is also equal to that horizontal ray. Okay, so that is horizontal line, so that is 90 degree. That is angle of incidence is equal to critical angle. In the last diagram what we observe it that, so that incident ray, so when it falls it exceeds that critical angle. So that is exceeds means more than that 90 degree. So its light reflects in the denser medium, so that is said to be total internal reflection. Okay, conditions necessary for internal reflections. First point, light should enter obliquely from a denser to a rarer medium. So what is the condition necessary for internal reflection? So light should be enter obliquely from denser to a rarer, means that's bend. Light should be bent in that when light enters from denser to rarer medium. Second, the angle of incidence should exceed it critical angle, the light reflects in the denser medium. So second situation, what that the angle of incidence should be exceed the critical angle. We see that in the last diagram, in the previous diagram, so that the angle is incidence should be exceed critical angle, the light reflects in the denser medium. Okay, the light reflects in the denser medium. Okay, these are the two conditions necessary for internal reflection. So what is critical angle? The angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree. So we already seen the third diagram, that in total reflection, internal refraction diagram. So what is that? The angle of incidence that is equal to that 90 degree, which is called as the angle of refraction. So that is called as critical angle. Okay, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस से और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो इक्वल किस में होना चाहिए? 90 डिग्री में होना चाहिए फिर. ओके, सो रेनबो नेक्स्ट. इट इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयर इन द स्काई आफ्टर रेन शवर्स. एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है. स्पेक्ट्रम डेफिनेशन बता दिया, द 7 कलर ऑफ बैंड्स कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रम है. ये स्काई में दिखाई देता है आफ्टर रेन शवर्स, जब बारिश होने के बाद. सो फर्स्ट पॉइंट देखना, रेनबो इज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन. रेनबो कब दिखाई देगा? हमें बारिश के टाइम में दिखाई देगा और सन भी प्रेजेंस होना चाहिए, और सन के अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो हमेशा हमें दिखाई देता है फिर. ओके, सो नेक्स्ट है थ्री फिनोमिनन विच आर इन्वॉल्व इन द रेनबो फॉर्मेशन आर. थ्री फिनोमिनन प्रेजेंस होता है रेनबो फॉर्मेशन के लिए, इंपॉर्टेंट है ये. सो फर्स्ट इज डिस्पर्शन, सेकेंड इज रिफ्रैक्शन, थर्ड इज इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये थ्री फिनोमिनन प्रेजेंस होगा तो ही रेनबो फॉर्मेशन होगा फिर. सो विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द थ्री, डिस्पर्शन, what is refraction, and what is internal reflection. Okay, now we discussed how is rainbow is formed naturally in that sky. Some water droplets remain suspended in the air after rain,
These droplets behave as glass prism. When light enters the raindrop, it first refracts and disperses. Then it reflects internally and again refracts as it come out of the drop, and the seven colors reach the eye of observer in form of rainbow. See the diagram first. So सन के अपोजिट में आपको सेवन कलर्स दिखाई दे रहे हैं इसमें. सबसे पहले जब बारिश होने के बाद कुछ रेन ड्रॉप्स सस्पेंडेड होता है एयर के अंदर, यानी एयर के अंदर प्रेजेंस होता है कुछ रेन ड्रॉप्स. वो जो रेन ड्रॉप्स होता है वो बिहेव एज ए ग्लास प्रिज्म, वो ग्लास प्रिज्म जैसे बिहेव करेगा. उसके अंदर जब सनरेज फॉल होता है तो एंटर होता है, तो रेन ड्रॉप के अंदर वो फर्स्ट क्या करता है, रिफ्रैक्ट्स होता है. जैसे रिफ्रैक्ट होगा यानी बेंड हो जाता है, बेंड होकर क्या कर देता है, डिस्पर्स कर देगा. क्योंकि सनलाइट है वाइट होता है, तो वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स, कल बता दिया था. डिस्पर्स होके सेवन कलर्स हो जा बता देगा, फिर स्प्रेड हो जाएगा, सेवन कलर्स डिस्पर्शन हो जाएगा. सो देन डिस्पर्स होने के बाद रिफ्लेक्ट्स होगा और इंटरनली यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. सो उसके बाद अगेन रिफ्रैक्ट हो रहा है बाहर आके, देखो ड्रॉपलेट से बाहर आकर. सो इट कम्स आउट फ्रॉम द ड्रॉप. सो सेवन कलर्स दिखाई देगा जो ऑब्जर्वर को, जो देख रहा है उनको. ओके, जो रेनबो इस तरह से फॉर्मेशन हुआ बोल के बता रहे हैं. ये वेरी इंपॉर्टेंट है रीजनिंग क्वेश्चन से, ये सारा 99% चांसेस है बोर्ड एग्जाम्स में आने का. फिर और डायग्राम भी आपको बनाना है, फिर लेबलिंग भी एग्जैक्टली करना है फिर. ओके, और फिनोमिनन कौन सा हो रहा है इसमें, डिस्पर्शन और रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है फिर. ओके, atmospheric refraction. The refraction by different layers of atmosphere is called atmospheric refraction. सो हमारे एटमॉस्फियर्स में बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंस हैं. सो आपने जियोग्राफी में पढ़ चुके हैं, दैट इज ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर्स है, आयोनोस्फियर है. तो ऐसे बहुत सारे लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फियर में, और उस लेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंस है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंस है, और ये गैसेस भी, डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस भी प्रेजेंस है. सो ये सारे कोई भी लाइट रे हमारे अर्थ में गिरेगा तो फिर एटमॉस्फेयर लेयर में पास आउट होता हुआ आएगा, तो रिफ्रैक्ट्स होता जाएगा. रिफ्रैक्ट मीन्स बेंड होता जाएगा हर बार भी. दैट इज कॉल्ड एज ए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस. ओके, इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के फिनोमिनन के कारण बहुत सारे हमें नेचर में दिखाई देता है. क्या क्या प्रोसेस है देखो. फर्स्ट वन, apparent flickering of objects placed behind a hot object or fire. एक कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट होता है उसके या फायर के जस्ट उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट्स रख रहे हैं, तो वो एक फ्लिकरिंग दिखाई देता है, अपेरेंट दिखाई देगा, यानी ओरिजिनल नहीं दिखाई देगा. एक जस्ट ऐसे दिखाई देता है कि एक ऑब्जेक्ट वहाँ पर भी आग जल रहा है जैसे. फिर सेकेंड है, स्टार्स नियर द हॉरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजिशन. जो स्टार्स आप नाइट में देखते हो तो वो एक्चुअल पोजीशन नहीं है, वो एक अपेरेंट पोजीशन है. क्यों? हाँ, वो हायर दिखाई देता है, मतलब ऊपर है जैसे दिखाई देता है, लेकिन वो रियलिटी वो थोड़ा सा नीचे होता है. और क्यों होता है वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में. सो नेक्स्ट है, थर्ड है एडवांस्ड सनराइज एंड डिले सनसेट. सो देखो हम देखते हैं सुबह सूरज उग रहा है यानी सनराइज हो रहा है, तो एडवांसली सनराइज हो जाता है, यानी कितना मिनट है वो भी डिस्कस करेंगे. और डिले सनसेट, और देखो सनसेट अभी हो ही नहीं, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन रियलिटी में सनसेट हो जाता है फिर. ओके, तो ये सारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है. और ये भी इतनी है कि स्टार्स भी ट्विंकलिंग भी हो रहा है. स्टार्स क्यों ट्विंकलिंग हो रहा है जैसे दिखाई देता है फिर, ये भी रीजंस हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी. ओके, ये सारे रीजंस हैं जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण. देखो, फर्स्ट स्टार्स व्हेन वी सी नियर द हॉरिजन appear slightly higher than their actual position due to the atmospheric refractions. अभी हमने बताया था कि स्टार्स हमें हमेशा हायर दिखाई देता है अपना ओरिजिनल प्लेस से,
यानी अपेरेंट पोजीशन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। ये डायग्राम देखना। सो ऑब्जर्व कर रहा है एक पर्सन, स्टार्स देख रहा है, तो ये रियली स्टार पोजीशन ए वाला है, देखो एक्चुअल स्टार पोजीशन ए लिखा है वो है। सो लेकिन आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा हाइयर में दिखाई दे, उसके ऊपर वाला दिखाई देता है ऐसे, अपेरेंट पोजीशन दिखाई देगा स्टार का। क्यों ऐसे दिखाई देता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है फिर। ओके, so the reason देखो, the refractive index of the earth atmosphere generally increases from top to bottom। टॉप टू बॉटम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। सो द लाइट कमिंग फ्रॉम ए स्टार नियर द हॉरिजन हैज टू ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। सो अब ट्रैवल कैसे हो रहा है? लाइट जो स्टार से आ रहा है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम हो रहा है। सो एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड्स हो जाता है फिर। एज द रिजल्ट द स्टार्स अपीयर्स हायर। ये रिजल्ट क्या बता रहे हैं? स्टार्स आपको हायर दिखाई दे रहा है फिर। ओके, सो ये कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेन है, और भी हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर। ओके, until you become safe and take care yourself. Okay.